students, welcome to biology class of StudyGist. Today we will complete the chapter which we have started, that's how do the organisms reproduce. So in today's class, the topics which are left in this chapter, these are the sexually transmitted diseases or the STDs. Okay, three diseases we are going to talk: gonorrhea, syphilis, and lastly AIDS. Okay, and after that, as the chapter will be completed, then we will discuss a few questions and their respective answers. Okay, but before I proceed, I want to remind you about our social media platforms through which you can reach us, you can contact us, and we can be in contact. So this, as you can see on the screen, that this is our YouTube channel, StudyGist Academy. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel. The link is provided here, and the name of the channel also you can clearly see, that StudyGist School 7 to 10. It looks like this. In this channel, about the study materials, about the live classes, each and every updates you will get instantly, you will get before the time. So do join this channel, follow us on Instagram, and you can also communicate with us through WhatsApp community. The number is displayed over the screen. And for more updates, for more details, do visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our free app of StudyGist is available. It looks like this, and it's a very user-friendly app, believe me. And in this app you will be getting this live classes are being conducted, and each and every subjects, the study materials and the recorded classes are available. So this will be very helpful for you. So without any further delay, do download this app and install it now. And this is how our YouTube channel looks like. So as I earlier told you, to subscribe our channel, and after subscription, don't forget to hit the bell notification. Keep this notification on to get the instant updates whenever any new videos will be uploaded in our channel. And this is how our Facebook page looks like. So like us on Facebook too, for being united with us. So now let's get started. So first topic, or the last topic we can say of this chapter, is sexually transmitted diseases. All right, it's in short, these are known as STDs. So the diseases, as the name suggests कि sexually transmitted diseases, मतलब transmission हम लोग जानते हैं कि transfer, right, from one person to another person, infection, transfer of disease, this is called transmission. So transmitted disease मतलब जो disease transmit होता है, अब कैसे होता है? Sexually, by sexual contact. The diseases which are transmitted or transferred or spread by sexual contact or by sexual means, this category is known as sexually transmitted disease. Okay, so the diseases which are spread by sexual contact with an infected person, these are known as sexually transmitted diseases. इस तरह से एक हेल्दी पर्सन को STD हो सकता है, STD का वो शिकार हो सकते हैं by making sexual contact with an infected person. तो कोई भी infected person, STD infected person, जिस person को मान लीजिए कि आप लोग मान लो कि sexually transmitted कोई भी disease है, उस disease से infected अगर कोई person हो और उसके साथ कोई अगर healthy person sexually contact में रहे, sexually is in contact with an infected person by sexually transmitted disease, तब वो sexually transmitted disease during that sexual contact उस healthy person में आ जाएगा, healthy person में transmit हो जाएगा. Okay, now we are going to talk about what are the sexually transmitted diseases, but what are the examples, which are the sexually transmitted diseases. So here are the three names you can see: gonorrhea, syphilis, and AIDS. Okay, and what's the full form? Full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Okay, तो ये जो तीनों diseases की नाम मैंने अभी कही आप लोगों को, वो जो है वो sexually transmitted diseases हैं. और इस सब के बारे में हम लोगों को जानना क्यों ज़रूरी है? Because when a person is having or suffering from these diseases, we have to be very careful before having sex or
before having any kind of sexual contact. तो first we are going to talk about the gonorrhea and syphilis. Gonorrhea और syphilis जो है these are caused by bacteria. तो ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन किया जाए कि नेम STD, name one sexually transmitted disease which is transmitted by means of bacteria. So any one name you can write, either gonorrhea or syphilis. So the bacteria which cause these two diseases, that means gonorrhea and syphilis, spread through the sexual contact with an infected person. Normally जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कि sexually transmitted disease sexual contact से ही फैलता है, right? The most common symptoms of these STDs are burning sensation at urination. Urination के टाइम में जब यूरिन पास होता है तब उस यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत बर्निंग, बहुत जलन होती है. That time you will feel or anyone can feel that he or she is a victim, maybe a victim of these bacterial transmitted, sexually transmitted disease, either gonorrhea, syphilis. तो यूरिनेशन के टाइम में बर्निंग सेंसेशन जो है, जो जलन है, वो एक बहुत मेजर सिम्टम्स है. नेक्स्ट, द पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज. सिर्फ बर्निंग सेंसेशन नहीं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो भी बहुत ही पेनफुल हो जाता है. एंड सोर्स इन द जेनिटल पार्ट्स जो है उसमें सोर्स हो जाते हैं, राइट. एंड गोनोरिया, साइफिलिस आर क्यूरेबल डिजीजेज. दिस इज अ गुड थिंग कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बैक्टीरिया से जो फैलती है, बट ऐसा नहीं है कि इसका क्योर पॉसिबल नहीं है. दिस इज पॉसिबल दैट इट कैन बी, दीज टू डिजीजेस कैन बी क्योर्ड. सो साइंस एंड सिम्टम्स में आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हो. निसोरिया गोनोरी जो है, दिस इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ गोनोरिया डिजीज. एंड एब्डोमिनल पेन एंड पेन विद द इंटरकोर्स के टाइम और मीटिंग के टाइम में बहुत पेन होता है. और वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो उसमें ब्लीडिंग होती है, मेल फीमेल आप लोग देख सकते हो. और यहाँ पर किडनीज जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है कि यूरिनेशन के टाइम में जो है बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होता है. एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन द पेनिस रीजन, पेनिस जो है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है. स्वेलन टेस्टिकल्स भी स्वेल हो जाता है. And discharge from the penis. So these are the symptoms by which we can understand, we can have the idea that maybe that person, male or female both, it's not that कि male में ही होता है, female में नहीं होता है, या female में होता है, male में नहीं होता है. It's irrespective of the sex, male female दोनों में ही होता है. But the good thing is these two diseases are curable. Okay. Next, this is a very important and very dangerous disease, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, जो कि पहले मैंने कहा आपसे. और ये जो है this is caused by the virus. This is transmission जो agent है, that's the virus. So आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि name one STD, name one sexually transmitted disease that is transmitted by virus and another that's transmitted by bacteria. So viral transmitted STD होगा आपका AIDS मतलब एड्स, और बैक्टीरियली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय बैक्टीरिया, उसमें से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आइदर गोनोरिया और साइफिलिस, कोई भी. ओके. और ये जिस वायरस से फैलता है, दैट वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है और आप लोग को जानने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसका नाम है HIV. बहुत हम लोग सुने होंगे कि HIV टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, HIV टेस्ट करना है, इसका किया गया कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको किया जा सकता है, करना चाहिए, ये जब हम लोग सुनते हैं तो HIV हम लोग कॉमनली सुनते हैं, पर शायद हम लोग को, बहुत जन को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में नहीं पता. तो ये नाम आप लोग जान लो. जो लोग जानते हो वेरी गुड, जो लोग नहीं जानते हो वो आज जान गए, दैट्स द सेम थिंग, राइट. सो एड्स जो है वो HIV वायरस से फैलता है. एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ HIV वायरस? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है. नाउ दिस इज द HIV वायरस बेसिकली. ओके. एड्स को फैलाने वाला जो वायरस है, एड्स को स्प्रेड करने वाला जो वायरस है, दिस इज द वायरस. ओके.
नाउ एड्स क्या करता है, इट डैमेजेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम सो दैट द बॉडी बिकम्स वीक एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ओके, सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज विच लीड्स टू डेथ. सो एड्स जो है वो इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की बॉडी में एक नेचुरली बिल्ट इम्यून सिस्टम होता है. मतलब ये मान लो एक बॉडी सेल है, आई टेल यू, यहाँ पर सपोज दिस इज एंटीजन. फॉर कॉमन नॉलेज आई एम राइटिंग हियर जर्म. कोई भी जर्म, फॉरेन कोई जर्म, कोई एंटीजन जब अटैक करता है तब क्या होता है, ये यहाँ पर ये देखो मैंने वाई शेप बनाया है, वाई शेप का एक रिसेप्टर रहता है. ओके, तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन अटैक करता है तब एक नेचुरल उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी, एक नहीं बहुत सारे एंटीबॉडीज जो कि एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर है, एंटीजन डिस्ट्रॉइंग फैक्टर है, वो प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, एंटीबॉडी, एंड विच इज नेचुरल. ओके, तो जब एंटीजन अटैक करता है तब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है. अब ये क्यों हो जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी बॉडी, आवर ह्यूमन बॉडी इज हैविंग इट्स नेचुरल पावर, नेचुरल इम्यूनिटी पावर. इम्यून बॉडी का एक नॉर्मल नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो कि ऐसे नॉर्मली क्रिएट होता है, बनता है, ताकि वो एंटीजन जो अटैक कर रहा है, जो जर्म्स अटैक कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर पाए. लेकिन ये क्या होता है इस डिजीज़ में, ड्यूरिंग एड्स अगर किसी को हो जाए तो एड्स पेशेंट की बॉडी का जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम काम करना बंद कर देता है. ये इतना बॉडी को वीक बना देती है कि बॉडी ठीक से अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पाता है. हम लोग की बॉडी या उस पेशेंट की बॉडी, एड्स पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसी बॉडी में जो नॉर्मल नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. वो बॉडी को इतना वीक बना देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई नॉर्मल सी फीवर का इन्फेक्शन आए, तभी फीवर का इन्फेक्शन आए मतलब फीवर का कोई वायरस अटैक करे, उसको भी ये उससे भी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. नॉर्मल कोई सर्दी खांसी जब हम लोग को होती है, वो देखना कि बहुत जन को ऐसे होता है कि 2-3 दिन रहता है कि 4-5 दिन रहते हैं, हम लोग ऐसे गुनगुना पानी खा लेते हैं, पी लेते हैं, राइट, गुनगुना पानी पी लेते हैं या फिर गार्गल कर लेते हैं. थोड़ी देर ऐसे ही रहने से, कुछ टाइम देने से अब वो नॉर्मली क्योर हो जाता है. पर यहाँ पर क्या होगा, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है बॉडी का कि नॉर्मल जो वायरसेस हैं, नॉर्मल जो जर्म्स है, उसके अगेंस्ट भी बॉडी कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है. एंड इसीलिए एड्स को बहुत डेंजरस डिजीज़ माना जाता है कि वो डेथ तक पहुंचा सकता है कोई भी इंसान को अगर किसी को हो जाए. एंड इसके लिए और भी क्यों डेंजरस है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि गोनोरिया और साइफिलिस, इन लोगों के लिए ये 2 डिजीज़ है क्योरेबल डिजीज़ है. लेकिन एड्स का कोई भी डेफिनेट क्योर नहीं है. आज तक कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन, स्पेसिफिक वैक्सीनेशन, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स नहीं बना है जो कि बॉडी को एड्स से, वी कैन गेट रिड ऑफ एड्स, वी कैन रिकवर फ्रॉम एड्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जिसका कोई डिजीज, जिस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, जिस डिजीज़ का कोई मेडिसिन, वैक्सीनेशन इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मार्केट, उसके अगेंस्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वो उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं. फ्रॉम द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग हैविंग सेक्स. इसमें हम लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना होता है, राइट. So this is all about the chapter. Now we are moving on to the discussion of the question answers. Okay, so our first question is, state the method used for growing rose plant. देखो, रोज प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर वेजिटेटिव जो प्रोसेस है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो प्रोसेस है, उससे रिप्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आई वांट टू रिमाइंड यू, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग दोनों पढ़े थे. वेजिटेटिव में उसमें दोनों टाइप था. एक था नेचुरल
और दूसरा था राइट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ये 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इज देयर, प्रोपैगेशंस आर देयर. सो नेचुरल में क्या था, नेचुरल में जो डिफरेंट पार्ट्स था, वेजिटेटिव पार्ट्स थे प्लांट्स के, जैसे मीन दैट्स मीन द रूट्स, द लीव्स एंड द स्टेम्स, ये सब नेचुरली, यहाँ से नेचुरली जैसे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होती है वो आता है इसमें. पर जो आर्टिफिशियल है उसमें तीनों प्रोसेस आते हैं, कटिंग, फिर ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये तीनों आते हैं. तो ये आर्टिफिशियल मेथड है. तो ये रोज प्लांट का जो ग्रो करने का प्रोसेस है, इसको हम लोग कटिंग प्रोसेस में, स्टेम कटिंग प्रोसेस से करते हैं. फिर ग्राफ्टिंग में दोनों था, उसमें से बड ग्राफ्टिंग है जो इस प्रोसेस में करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से प्रोसेस से रोज प्लांट को ग्रो करते हैं? दैट आंसर विल बी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन एंड हाउ इट इज डन बाय स्टेम कटिंग्स एंड बड ग्राफ्टिंग्स. बड पार्ट जो है उसका ग्राफ्टिंग करके टी शेप जो किया जाता है, दैट बाय दैट प्रोसेस इट इज डन. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ वुमन. कब हम लोग ये समझ सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं एक वुमन को कि वो प्रेग्नेंट है? देखो, जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनर यूटेराइन जो वॉल है, जब देखते हैं कि बॉडी फील कर लेती है जब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब स्पर्म जो है उसके साथ कोई फ्यूजन नहीं हुआ है ओवम का, एग का, तब यूटेरस का जो इनर वॉल है, इनर वॉल और इंटैक्ट नहीं रहता है. वो जो स्पॉन्जी नेचर है उसका, क्यों रहता है ये स्पॉन्जी नेचर? ताकि क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज इससे बना होता है, तो ये उसमें नहीं रहता है तब, और इसके लिए क्या होता है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. तो ये नॉर्मली होती है इन एवरी मंथ विदिन दैट 28 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. पर जब प्रेगनेंसी आती है तब क्या होता है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है. फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होगा. राइट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका मतलब जो है वो इनर यूटेराइन जो सॉफ्ट वॉल था जो वॉल था वो डिग्रेड नहीं होगा, वो वैसे ही बना रहेगा टू गिव द प्रोटेक्शन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो. सो व्हाट इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ वुमन? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी द इंडिकेशन कि दैट वुमन इज प्रेग्नेंट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड? पिक्चर में देख लो, अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इन डिटेल. जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, ये अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा पार्ट है within the womb, within the woman, within the female womb, जिससे ये कनेक्शन बना रहता है between the placenta and the developing fetus within the uterus. Okay, so ये क्या करता है, ये जो है it contains blood vessels and it supplies blood between the fetus and the placenta. ये placenta जहाँ मदर बॉडी से, जहाँ से न्यूट्रिशन फिर ऑक्सीजन हर एक रिक्वायरमेंट मिलती है, वो रिक्वायरमेंट को पहुंचाने में ये अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करता है टू द डेवलपिंग फीटस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. देखो, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन उससे मैंने अभी कहा आप लोग को नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों स्टेप में होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है. देखो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो ये हम लोग वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कम्स अंडर द आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, सो देयर आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. देखो, सेक्सुअल लिख देती हूँ मैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल. देखो, असेक्सुअल में जो है एक ही पेरेंट रहता है, राइट, 1 पेरेंट, और सेक्सुअल में क्या रहता है, 2 पेरेंट्स. बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट हियर व्हाई आई एम कंसर्न विद दिस पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि असेक्सुअल में एक ही पेरेंट रहता है, और एक ही पेरेंट रहने से क्या होता है, एक ही पेरेंट रहने से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आएगा डॉटर में. मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन का जो सेल है उसमें यही कैरेक्टर आएगा. ओके, सो देयर विल बी
नो वेरिएशन, राइट, कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट रहते हैं, सो दोनों पेरेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलके आ जाता है आपका किसमें, जाइगोट में आ जाता है। मतलब न्यू बॉर्न जो है उसमें दोनों पेरेंट का जो कैरेक्टर्स है वो मिलने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं रहेगा। सो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन एंड द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर लेस अडेप्टेबल टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब कोई भी एनवायरमेंटल चेंज, सडन जो चेंज होता है, सडन जो म्यूटेशन, सडन एनवायरमेंटल चेंजेस, उसके साथ कोप अप करने के लिए ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ reproducing by using vegetative propagation in plants. Okay, moving on to the next, how can pregnancy be prevented surgically? अब by surgical method how it can be prevented? See, in case of male, when the vast difference in males, okay, males, यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वास्ट डिफरेंस का कुछ पार्ट को कट किया जाता है, फिर उसको टाई कर दिया जाता है, सर्जिकली कट करके उसको टाई कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म का जो ट्रांसफ़र है, स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कट है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। ओके, सेम एज इन केस ऑफ फीमेल, और सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल, जो यहाँ का ओविडक्ट होते हैं और द फैलोपियन ट्यूब्स, दीज आर कट एंड टाइड, वो भी सर्जिकल मेथड से कट करके फिर से कट टाई कर दिया जाता है, ताकि एग विल नॉट बी एबल टू रिच द यूटेरस। देखो, एग यहाँ पर प्रोड्यूस तो होगा, ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा, फनल लाइक पार्ट से ये जाएगा, ये ओविडक्ट तक भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली इसको जाइगोट अगर बन भी गया, जाइगोट बनने के बाद आना कहाँ है, इम्प्लांटेशन के लिए इनसाइड द यूटेरस, बट हियर देयर इज अ कट। सो अगर यहाँ तक जाइगोट आ भी गया, जेड लिख रहे हो जाइगोट को, देखो जाइगोट अगर यहाँ तक आ भी गया तो नहीं पहुँच पाएगा यूटेरस तक, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द ब्लॉकेज, दिस इज द कट। सो इन दिस वे द प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। सो यही है सर्जिकल मेथड्स। नेक्स्ट, correlate the number of chromosomes with the size of the organism and answer the following questions. So देख लेते हैं कि फर्स्ट के कंडीशन क्या है, डू द लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा, उसमें क्या बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा या सेल रहेगा? नो, क्योंकि there is no relationship between the size of the organism and its chromosome number. कोई एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, उस साइज से क्रोमोसोम नंबर का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक थिंक अबाउट, वी ह्यूमंस, वी आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर ईच सेल, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मेच्योर हैं, मेच्योर ह्यूमन की एक एक सेल में, बॉडी में एक एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और जो न्यू बॉर्न्स है उसकी क्रोमोसोम जो है उसका 23 नहीं है, उससे कम है, क्योंकि वह छोटा है साइज में, साइज एंड शेप दे आर स्मॉलर देन द मेच्योर वन। सो इट्स नॉट दैट, क्योंकि साइज ऑफ द बॉडी के साथ, बॉडी का साइज के साथ क्रोमोसोम नंबर का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो दिस इज completely wrong. Next one, can an organism with fewer number of chromosome reproduce more easily than the organisms with more number of chromosome? जिसके पास कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो क्या ज़्यादा easily reproduce करेगा in comparison with the organism with more number of chromosomes? No, क्योंकि the process of reproduction follows a common pattern and is not dependent on the number of chromosome. तो इसका जो process है reproduction का, वो एक proper जो process को ही follow करता है। ऐसा नहीं है कि जितना number of chromosome है उसके साथ इसका कोई relation है, तो this is also not possible. And last one is, more number of chromosomes or cell, greater is the DNA content. जितना क्रोमोसोम का नंबर और सेल का नंबर जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना डीएनए कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो यस,
this is the thing, this is the event which is possible, which happens actually since क्योंकि major component of chromosome is DNA. DNA में जो majority है उसमें क्या रहता है, DNA रहता है, gene रहता है, right? So if there are more chromosomes in a cell, so definitely nucleus के अंदर क्या है, cell के nucleus के अंदर ज़्यादा क्रोमैटिन फाइबर्स रहेगा, ज़्यादा क्रोमैटिन फाइबर्स एक साथ कंडेंस होकर ज़्यादा क्रोमोसोम बनाएगा, और ज़्यादा क्रोमोसोम मतलब देयर विल बी मोर क्वांटिटी ऑफ डीएनए एज वेल. ओके, नेक्स्ट वन. Now this is the diagram. You have to identify the process. Now which organism is performing this process and how is the above methods different from the process of fragmentation. Okay, so this process, whatever we are seeing, see this is the, we can see this is a binary fission, simply binary fission, and it's a mode of asexual reproduction, and where it takes place or who is basically in which organism it is happening in amoeba. सो डेफिनेटली ये एमीबा का बाइनरी फिशन है, और एमीबा को छोड़ के भी यूग्लिना, पैरामीशियम, इनमें भी ये बाइनरी फिशन देखी जाती है. एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट, दिस फिशन, व्हाट इज फिशन? फिशन जो है, जो कि पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है, डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होती है विद अ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एमीबा एंड पैरामीशियम. और फ्रैगमेंटेशन क्या है? फ्रैगमेंटेशन है, देखो स्पाइरोगाइरा जो एल्गी था, जो हम लोग पढ़े थे फ्रैगमेंटेशन के टाइम में, एल्गी, उस स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, बॉडी, पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो फ्रैगमेंट्स में भी भाग, मतलब डिवाइड हो जाता है वो, उसके बाद भी उस एक एक फ्रैगमेंट से एक एक न्यू बॉडी बनता है. तो इट इज़ अ डिविजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 or more small fragments, and it occurs only in multicellular organism. In case of unicellular organism, fragmentation doesn't occur, and that organism, multicellular organisms, definitely they are having more complex structure. Okay, next, Ravi took 3 breads लिए थे, 3 bread slices. अब तीनों कंडीशन में रखा है. फर्स्ट कंडीशन की ड्राई और डार्क प्लेस में, ड्राई और डार्क प्लेस में रखने से क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, and it will remain sterile because it lacks moisture. इसमें कोई moisture नहीं है, इसीलिए इसमें कोई change नहीं आएगा. ठीक है. Next one, slice is kept in a moist and dark place, and third one is slice जो है वो moist and refrigerator में रखा गया है. तो moist and dark place में रखने से क्या होगा, ऑब्वियसली ये फंगस के लिए बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा सराउंडिंग होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा. तो वाइट कॉटनी मास सराउंडिंग द ब्लैक पिन हेडेड, ये देखो आप लोग, दिस इज द कंडीशन. ब्रेड का ऐसा कंडीशन होगा, इसमें जो फंगस, इसको अगर हम लोग अच्छे से देखें तो दिस विल बी अ स्मॉल पिन लाइक ब्लैक हेडेड एक स्ट्रक्चर देखा जाएगा, एंड दिस इज द टाइनी स्पोर्स ऑफ द rhizopus. Rhizopus is the fungus, and in humid condition this is very obvious thing, and this is why स्लाइस 2 में क्या होगा, स्लाइस 2 में ये कंडीशन हो जाएगा स्लाइस का. और जो नेक्स्ट मतलब नंबर सी था, द स्लाइस इन विच इज केप्ट इन द मॉइस्ट एंड इन रेफ्रिजरेटर, मॉइस्ट कंडीशन में और रेफ्रिजरेटर में, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट विल रिमेन स्टेराइल एज इट इज केप्ट इन द लो टेम्परेचर. रेफ्रिजरेटर का लो टेम्परेचर में ये स्टेराइल कंडीशन में रहेगा, इसलिए नंबर 3 थर्ड स्लाइस ब्रेड का जो है उसका भी कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, सम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. State the event. What is happening? This event is definitely fertilization, right? Fertilization हो रहा है, और ये क्या पार्ट्स है, देखो पार्ट्स तो है, ये तो स्पर्म है, स्पर्म का these are the tail, and this one is what, ये हेड जो है ये ओवरी के अंदर घुस गया है, तो this is the head of sperm, a tail of sperm, और ये जो है दिस इज द ओवम, राइट, ओवम और एग. नेक्स्ट वन यहाँ भी हम लोग को पार्ट्स लेबल करना है, पार्ट्स को. तो ये हो गया आपका रिसेप्टिकल, दिस इज द पेटल. ओके, ये क्या है, ये दिस इज द पेडिसेल. पेडिसेल क्या होता है, फ्लावर का स्टॉक है, फ्लावर है ना, फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स है, स्टॉक है.
देखो, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज व्हाट, ये एंथर है मेल पार्ट, और ये हो गया आपका फीमेल पार्ट बचा हुआ। फीमेल पार्ट में एकदम नीचे आता है स्वेल पार्ट, ओवरी, और ये है ट्यूब लाइक स्टाइल, और ये आपका हो गया स्टिग्मा, राइट। तो ये तीनों पार्ट बना के क्या बनाता है, एक पिस्टिल बनाता है, राइट। और ये जो दोनों पार्ट है एंथर और फिलामेंट, ये क्या बनाता है, पिस्टिल। पिस्टिल भी है, इसको और क्या कहा जाता है, कार्पेल भी कहा जाता है। और ये एंथर और फिलामेंट जो है ये भी दोनों मेल पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है दोनों, और दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज विच स्ट्रक्चर, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसमें देखो दिस इज द यूटेरस, ये क्या है, दोनों साइड में दोनों ओवरी है, तो एक साइड में ही है, इधर लिख देती हूँ, दिस इज द ओवरी, एंड दिस इज द, इधर लिखती हूँ, दिस इज द fallopian tube. Okay, so in this way, this is all about today. In this way, I think we have completed the chapter very well. See you in the next class with a new more chapter. Okay, stay well and see you in the next class. Thank you.